बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान कभी नामर्द नहीं होता? जवाब: गोंद का दरख्त। सवाल: जमीन पर पहला जलजला किस गुनाह की वजह से आया था? जवाब: कत्ल की वजह से। सवाल: एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में कितने लीटर खून होता है? जवाब: 6 लीटर खून होता है। सवाल: कौन सा रंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था? जवाब: सुर्ख रंग पसंद नहीं था। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर किस चीज़ से बनी हुई कंघी इस्तेमाल करते थे? जवाब: हाथी दांत की बनी हुई। सवाल: सबसे पहले मिसवाक किसने इजाद की? जवाब: सबसे पहले मिसवाक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इजाद की थी। सवाल: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: कौन से पैगंबर थे कि जब वो किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पहाड़ खुद नीचे हो जाया करता था? जवाब: हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ खुद नीचे हो जाया करता था। सवाल: दज्जाल किस चीज का बना होगा? जवाब: दज्जाल मिट्टी का बना होगा। सवाल: रिस्क को कौन सी चीज आपके पास खींच लाती है? जवाब: इस्तग़फ़ार की कसरत। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। सवाल: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल: किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने साथ वो निस्बत थी जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी? जवाब: अपने चचेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इन्हें ग़ज़वा तबूक में मदीना में छोड़ा था।
سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ 7,000 سال تک جہنم میں رہے گا۔ سوال: قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نماز کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے غربت نہیں آتی؟ جواب: اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، یا مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو دینے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی احادیث اور روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ گھر میں ہر وقت صفائی رہنی چاہیے۔ سوال: مہمان نوازی کتنے دن کی شمار ہوتی ہے؟ جواب: مہمان نوازی 3 دن تک کی شمار ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ اور مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب: عشرہ اور مبشرہ 10 صحابی تھے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب: نمرود کنعان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: کون سے پودے کے پھول کھانے سے شوگر، کینسر کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کیمو کی میڈیسن جو کینسر کے مریض کو دی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا الکلائڈز کے حصول کا سورس آف الکلائڈز کا جو ہے وہ سدا بہار کا پھول ہے۔ یہ بہت بڑا اینٹی کینسر ہے۔ اگر یہ پودا آپ کے گھر میں، صحن میں یا پھر اطراف میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی، انہیں وائرس کہہ لیجئے یا پھر مختلف بیماریاں، بد اثراتی ہو یا نحوست کہہ لیجئے، کوئی بھی ایسا فنکشن یا ایکشن جو نظر نہیں آ رہا ہو مگر وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی یہ پودا لگا ہوتا ہے وہاں پر شام کے وقت اس پودے کی بھینی بھینی ہوا، قبل از فجر یا فجر کے فوری بعد اس کی بھینی بھینی ہوا چلتی ہے۔ اس کی خوشبو سکون کو پھیلاتی ہے اور انسان کے جسم میں سب سے بڑا ٹاکسن جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، انفلاممیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ پودا، یہ پھول اور اس کی خوشبو اور اس کے ہوائی اثرات اڑا دیتے ہیں اور جسم سے تمام منفی اثرات نکال دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ سدا بہار کے پھول کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ملا کر نہار منہ پینے سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟
جواب: نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال: وضو کے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ بار دھونے پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: سخت گناہ ہے۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال: جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال: مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے صاف جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دجال سمجھتے تھے، اس کی کنیت کیا تھی؟ جواب: صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ سوال: اندھا، گونگا اور بہرا فرشتہ کس کی قبر پر مسلط کیا جائے گا؟ جواب: قبر کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر پر مسلط کیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اساگ گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ سوال: گھر میں کس جگہ کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہے؟ آپ کمرے میں کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہیں۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟
जवाब, जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हजरत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल, किस काफर बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी? जवाब, काफर बादशाह नमरूद ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी। सवाल, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब, मस्जिद अक्सा को अक्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्जिद अक्सा मक्का हिजाज से बहुत फासले पर है। सवाल, हर नबी को नबुवत पुख्ता उम्र में मिली, वो कौन से नबी हैं जिनको नबुवत बचपन में मिली थी? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को नबुवत बचपन में मिली थी। सवाल, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही किस मौके पर नाजिल हुआ था? जवाब, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुआ था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब नसीब हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 12 नबवी में नसीब हुई। सवाल, घर का कौन सा काम करने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं? जवाब, कपड़े धोने से। तहकीक के मुताबिक जो लोग हाथ से कपड़े धोते हैं इनका दिल मजबूत होता है और दिल की अक्सर बीमारियों से भी निजात मिलती है। सवाल, किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? जवाब, रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात मैदान अरफात में हुई। सवाल, फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब, फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल, वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? जवाब, अपना नाम है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है। सवाल, क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया को क़यामत के दिन हमादुन के लक़ब से पुकारा जाएगा।
सवाल, किस इंसान की बद्दुआ फौरन लगती है? जवाब, कुछ लोगों में यह ख्याल पाया जाता है कि ख्वाजा सरा यानी कि हिजड़े अगर बद्दुआ दे तो इनकी बद्दुआ लग जाती है, इस वजह से कि वो हिजड़ा है उसकी बद्दुआ लग जाएगी। तो हकीकत यह है कि ऐसी कोई बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लेकिन अगर किसी ख्वाजा सरा के साथ जुल्म किया है तो उस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के माबेन कोई हिजाब नहीं होता, यानी अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। तो अगर कोई ऐसा हिजड़ा है जिस पर जुल्म और ज्यादती हो, उसे हद से ज़्यादा जानबूझकर मारा जाए, तो वो उस लिहाज से बद्दुआ दे तो उसकी बद्दुआ लगने का ख़तरा है कि वो मजलूम है, इस लिहाज से नहीं कि वो हिजड़ा है। सवाल, अल्लाह ने सबसे पहले जिस जानवर को पैदा फरमाया इसका नाम क्या है? जवाब, जानवरों में सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया जिसका नाम लूतिया वैमूत है। सवाल, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल किरा जिक्र किया गया है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र किस आसमानी किताब में आया है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र कुरान पाक में आया है। सवाल, किस नबी ने शादी नहीं की थी? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल, बताइए पजामा और कंघी किस नबी की ईजाद है? जवाब, पजामा और कंघी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईजाद है। सवाल, कौन सी कौम हाथों से पहाड़ तोड़ती थी? जवाब, कौम आद हाथों से पहाड़ तोड़ती थी। सवाल, वो कौन सा कबीरा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब, खुदकुशी करना। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पैदाइश हुई थी इस जगह का नाम क्या है? जवाब, बैतुल लहम। सवाल, तमियम के कितने फ़राइज़ हैं? जवाब, तमियम के दो फ़राइज़ हैं। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने घर के बारे में वसीयत की थी कि इसे फ़रोख्त करके उसे कर्ज़ा अदा कर दिया जाए, उनका घर किसने ख़रीदा? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने घर के बारे में वसीयत की थी कि इसे फ़रोख्त करके इसे कर्ज़ा अदा कर दिया जाए, उनका घर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने ख़रीदा। सवाल, महर मुअज्जल किस महर को कहा जाता है? जवाब,
जो महर फौरन अदा किया जाए उसे महर मुअज्जल कहा जाता है। सवाल, एक मर्तबा दुरूद भेजने पर अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं? जवाब, एक मर्तबा दुरूद भेजने पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सवाल, इराक की लैंग्वेज क्या है? जवाब, इराक की लैंग्वेज अरबी है। सवाल, क़यामत में सबसे पहले हिसाब किससे होगा? जवाब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से होगा। सवाल, हज की लुग़वी माने क्या हैं? जवाब, इरादा करना या कसरत करना। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब, क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल, किस सहाबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई? जवाब, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब, सूरत कहफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल, किस जन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब, सहर जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र 453 मरतबा आया है। सवाल, तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम किस दिन लाज़मी कैलुला करते थे? जवाब, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जुम्मे के दिन नमाज जुमा के बाद खाना खाते और कैलुला किया करते थे। सवाल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह किस खलीफा के दौर में थे? जवाब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून के दौर में थे। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कबूल किया। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था।
सवाल, नेकी करते वक्त कौन सी निशानी का जाहिर होना दौलतमंद होने की अलामत है? जवाब, नेकी का काम करते हुए और यतीम की मदद करते हुए धोखा मिले तो समझ जाओ कि तुम दौलतमंद होने वाले हो। इस कौल का जिक्र किसी हदीस में नहीं है। ये हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कौल है। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल, इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग़ कौन हैं? सवाल, एक औरत का पर्दा तो बुर्का है, लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है? जवाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जुमा, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। जवाब, इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग़ हज़रत मसअब बिन उमैर थे। सवाल, इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अलकंदी है। सवाल, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल, इंसान की रूह को जिस्म से कितने साल पहले पैदा किया गया था? जवाब, इंसान की रूह को जिस्म से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ होते हैं? जवाब, नमाज में 6 फ़राइज़ होते हैं। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार दहली में वाक़या है। सवाल, किस खलीफा को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम लाने पर आसमान वालों की तरफ से मुबारक मिली। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने खो दी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक हज़रत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खो दी।
سوال: کون سا فرشتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا؟ جواب: بیت المقدس، حضرت سلیمان علیہ السلام، مسجد نبوی اور مسجد قباء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون سے ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور جادوگر کون تھا؟ جواب: سامری تھا۔ سوال: کون سے نبی سارنگی بجاتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام سارنگی بجاتے تھے۔ سوال: علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق کس زبان میں ہے؟ جواب: علامہ اقبال کی پیام مشرق فارسی زبان میں ہے۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں؟ جواب: میقات۔ مکہ جانے والے راستوں پر وہ 5 خاص اور متعین مقام ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں ہے، چاہے جس غرض کے لیے بھی جا رہا ہو۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ سوال: کون سی چیز نہار منہ پینے سے انسان 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ جواب: دودھ اور شہد کھانے سے۔ سوال: کس انسان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب: اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے جو مشرک مرے۔ سوال: عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب: عرب کا علاقہ بحرین سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے۔ سوال: عرب میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں؟ جواب: عرب میں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز گزرتے وقت لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ جواب: عمر لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے۔ سوال: ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے انسان کی اللہ تعالیٰ کون سی چیز کم کر دیتا ہے؟
जवाब, माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला उम्र कम कर देता है। सवाल, किस वजह से औरतें जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती हैं? जवाब, ज़्यादा गम की वजह से औरतें जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती हैं। सवाल, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? जवाब, हमारे जिस्म का वो हिस्सा दांत है जो पैदा होने के बाद मिलता है। सवाल, औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब, बेकाबू और बेहया ज़बान है जो शौहर की जान भी ले सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।